number 170. Page number 170. Please open page 170. Right? Okay. This is about the there are two types of new functions. दैट इज आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपने बहुत से फंक्शंस, उसी कंटिन्यूएशन में दो फंक्शंस और हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल function and logarithmic functions, right? Exponential function and logarithmic functions, the questions of these two functions, derivative, you have to find the derivative of these two functions, right? Actually, to find the derivative is not a difficult work, this is very easy, but the matter is that what is exponential function and what is logarithmic function. First we will understand, then we will try to solve the question. Exponential function is nothing simple. These both are related to each other actually. Exponential function and logarithmic function both are related to each other. How they are related to each other, we can say that like this. Suppose in somewhere you can give attention here. Suppose ah, okay. Suppose I want to express one natural number. Suppose this is one number, positive real number, that is suppose 36. And actually this is the method of representing any positive real number. In two ways we can represent any positive real number in two ways. For example, suppose somewhere 36 is written, right? 36 is a positive real number. Okay, and we can represent 36 in two ways. Look here, 36, this 36 can be written as 6 raised to the power 2, right? And the same thing in other way here, we, in this, in here, we can write in this way. Log of 36 base 6 is equal to 2. Actually, this first type of representation is known as, this is what is exponential form. This form is written as what is exponential form, right? That is 36 6 raised to the power 2. This is class 6 7 का आपका question है. This is not a new thing, right? Only special thing is that there are some way by which you can write. And second thing is that when this one 6 raised to the power 2 is equal to 36, that is exponential form. And if we want to change it in logarithmic form, तो logarithmic form में इसी चीज को कैसे लिखा जाएगा, that can be written as log of 36 base 6, 36 base 6, right, is equal to 2. है सेम चीज, इसी को हमने लिखा है. ये इसका रिवर्स प्रोसेस, दोनों एक दूसरे के क्या है, हम कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस. तो आपको जब बार बार अब क्वेश्चन आएंगे ना, तो कहीं पर ऐसा लिखा मिलेगा तो हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से बदल पाएंगे, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, राइट. जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n, इसी चीज को हमने अब इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की. 6 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36, हमने इसको लिख लिया सपोज a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n, right. This form is known as what is exponential form. Okay, and here one thing is important, always n is greater than 0, positive real number. This base is also equal to what is greater than 0. This is positive real number. Okay, and in this connection you can give proper attention in your that is here. देखिए ये ये एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट. ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके हैं, ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ है. स्पेशली दिस लास्ट ग्राफ, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया हुआ था कि
जैसे जैसे हम इनकी पावर्स इंक्रीज करते जाते हैं, देखिए y रेज टू द पावर x, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, फिर y रेज टू द पावर x स्क्वायर, पैराबोलिक कर्व y रेज टू द पावर x क्यूब, y x रेज टू द पावर 4, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4, इसके पहले था y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3, और ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 10। जो अभी हमने आपको पीछे एग्जांपल दिखाया a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n के फॉर्म का हमने जो दिखाया वही चीज। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन इस फॉर्म में अगर लिखा होता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, देखिए आप उसी उसमें डेफिनेशन देखने की कोशिश करिए। इट इज रिटन दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस, देखिए बेस b इज ग्रेटर देन 1 is written as like this function is known as what is exponential function। तो आप केवल इतना समझने की कोशिश करें, if any positive natural number can be written in this form, right? जैसे हमने 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर बताया, तो ये वही चीज यहाँ पर लिखी है। इस फॉर्म में अगर लिखा होता है तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, राइट? अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि इस ग्राफ से आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जाती है, ये पहले ये देखिए स्ट्रेट लाइन थी, फिर ये थोड़ा कर्व कर्व, और ये टूवर्ड्स कहाँ पर किस तरफ झुकता जा रहा है, टूवर्ड्स वाई एक्सिस ये टर्न होता जा रहा है। कहाँ पर टर्न होता जा रहा है, वाई एक्सिस। तो ये एक लिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x का ग्राफ ये लिया हुआ है, ठीक है? इस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक ग्राफ बताया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि हम हमारे पास में दो टाइप के हम बेस लिया करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 रेज टू द पावर x लिखा हुआ है ना, तो हम ये देखिए यहाँ पर हम दो तरीके के बेस यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए आप इस इधर पर आप समझने की कोशिश करिए, इस लाइन पर आइए जहाँ पर हमारा ये कर्सर चल रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए या कॉपी में लिखिए, राइट? कि लिखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस 10 is called the common exponential function। Okay, whenever the base is 10 we call it common exponential function। Okay, जैसा कि ये इसका एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए y is equal to 10 raised to the power x, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एंड सेकेंड टाइप का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हम यूज करते हैं कि when, लिखिए when the base is e, देखिए when the base is e, small e, it means ये लिखा हुआ y is equal to e raised to the power x, y is equal to e raised to the power x, right, is called natural exponential function। अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी में भी लिखिए इसे। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, here are two types of we call, give the name, two types of name, that is first one is common exponential function and this is natural exponential function। and e जो होता है ना, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी वैल्यू आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, इसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 2 to 3। e लाई बिटवीन 2 to 3, वैल्यू ऑफ e लाई बिटवीन 2 to 3। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार कहीं पर जो जरूरत पड़ सकती है, द वैल्यू ऑफ e कहाँ पर लाई करती है, बिटवीन 2 to 3 एंड नियर अबाउट 2.78 समथिंग ऐसी कुछ होती है इसकी वैल्यू, राइट? 2 to 3 के बीच में लाई करती है एंड दिस इज व्हाट इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब इसके कुछ हम आपको प्रॉपर्टीज उस दिन हम बता रहे थे इस ग्राफ के रिलेटेड, उस ग्राफ को थोड़ा सा आप फिर से एक बार जल्दी से समझ लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको इतना समझ में आया व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट मींस इफ वी रिप्रेजेंट अ नंबर इन दिस फॉर्म, राइट, y is equal to b raised to the power x where b is greater than 1, right, is known as what is exponential function। ओके, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दिस इज द ग्राफ ऑफ वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 रेज़ टू द पावर x। इसको भी हमने क्या नाम दिया हुआ है?
when the base is 10 we call it what? Just now you note, अभी आपने लिखा है क्या बोलते हैं? when base is 10 कॉमन एक्सपोनेंशियल कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, दिस इज कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को आप यहाँ थोड़ा फोकस करिए। यहाँ पर देखिए, हम इसके बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप समझिए। देखिए, फर्स्ट वन, डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होगा ना, वो क्या होगा? वो हरदम क्या होगा? आपका रियल नंबर होगा। राइट? क्या मतलब है इसका एक्सपोनेंट की? हमने बोला कि डोमेन इज ए रियल। डोमेन आप जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, for which the function is defined, right? We can simple in language, we can say that domain, it means simple we can say that for which the function is defined। तो फंक्शन कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइन है यहाँ पर? फॉर ऑल रियल नंबर्स। कैसे? देखिए, ग्राफ पर आप फोकस करिए। इन दिस ग्राफ यू कैन गिव प्रॉपर अटेंशन। ग्राफ इज बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस पर अपन ने बनाया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे? डोमेन की वैल्यू लेंगे, और वाई एक्सिस पर वी विल गेट व्हाट इज उसकी जो आउटपुट होगा, रेंज हम जिसे बोलते हैं, वो हमको मिलता है। तो यहाँ अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखें तो ग्राफ इज लाइंग बिटवीन विच टू क्वाड्रेंट? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए, थर्ड एंड फोर्थ का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। कहीं दिख रहा है आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ग्राफ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इट मीन्स कि अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो है, ये देखिए, वी कैन टेक कहीं भी इसकी इस साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस साइड कहाँ ले सकते हैं हम इसको? नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू जा सकती है। ठीक है, hence domain is what is real number। first point is clear, domain is real number। second point, the range of the exponential function is the set of all positive real numbers। range मतलब आउटपुट जो है ना, वो हमको क्या मिलता है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। कैसे? इस ग्राफ पर देखिए, हमको रेंज कहां पर मिलने वाली है? माने आउटपुट किस पर मिलने वाला? y आउटपुट होगा। राइट? तो y की वैल्यूज, y निगेटिव कहां पर होता है? ये नीचे साइड में। बट ग्राफ, टोटल ग्राफ इज लाई ओनली इन द अपर साइड। नेगेटिव का कोई यहाँ पर यूज ही नहीं हो रहा, y के नेगेटिव का। राइट? और ये देखिए, ये पॉजिटिव साइड में ही मिल रहा है ना। हेंस वी कैन से दैट दिस, जो इसने बोल रहा है, रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है? द पॉइंट 01 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पॉइंट 01, ये देखिए, दिस पॉइंट 01, ये दिख रहा है आपको, ये 01 पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ। क्यों लाई करेगा? बिकॉज द ग्राफ इज इक्वल टू, सपोज y इज इक्वल टू 10 raised to the power x। 10 raised to the power x, when we substitute x is equal to 0 here, तो कितना रिजल्ट मिलने वाला है? x 0 रखेंगे तो हमारे को 1 मिलेगा। तो ये पॉइंट 01 ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ। राइट? देखिए, थर्ड पॉइंट यहाँ पर आई है कि फोर्थ वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है मतलब फंक्शन, अभी हम और नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास में आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीज, वी विल डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो उसको उसने यहाँ पर भी बताने की कोशिश की है। ऑलवेज देयर फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग, या कई बार नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी होता है। अब ये हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग? तो देखिए, बिकॉज अगर हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो इस तरीके से जाएगा। ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट, ये इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ देन इट इंक्रीजेस, ये इस तरीके से ऊपर चल रहा है। हेंस दिस इज द फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज व्हाट? इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू। सर एक डाउट था। हाँ, सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे होते हैं, तो सर वो इवन और ऑड भी उसी को बोलते हैं क्या? अलग होता है? नहीं, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन अलग चीज होती है। ठीक है ना। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो फंक्शन अपना कैसा इंक्रीज कर रहा है कैसा डिक्रीज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो
इवन ऑड फंक्शन इस तरीके से हो सकता है कि जैसे आपने कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू आपने मान लीजिए ले लिया है एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ये क्या हो जाएगा, आप x की वैल्यू अगर यहाँ पर आप कुछ भी रखेंगे तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, यहाँ पर हरदम पॉजिटिव मिलेगा। तो हम उसको बोलते हैं ये क्या है आपके पास में इवन उसमें जाएगा। और तो उसके लिए डेफिनेशन है, आपने अगर लास्ट ईयर पढ़ी हो कि फंक्शन इस तरीके से देखिए, ये अगर समवेयर इट इज रिटन लाइक दिस, ऐसा अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है अपने पास में, y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। और इसमें हमने अगर सब्स्टिट्यूट किया कितना, x इज इक्वल टू माइनस एक्स रखा, है ना। और माइनस एक्स रखने के बाद में हमारे को अगर फिर से जो फंक्शन हमने जब वैल्यू रखी और रखने के बाद में हमने यहाँ पर सबको सब्स्टिट्यूट किया माइनस एक्स, तो दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट। और रिजल्ट हमारे को कितना मिलता है, यहाँ पर पॉजिटिव ही मिलता है, एफ एक्स ही मिल जाता है। क्या मिलता है, वो हमारे को एफ एक्स ही मिलता है। तो हम इसको बोलते हैं दिस इज इवन फंक्शन। ये कितना बोलेंगे हम इसे, इवन फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू, आप अगर ले लेते हैं सपोज cos थीटा, राइट, या cos x ले लें, वॉट एवर, x को अगर हमने निगेटिव कर दिया यहाँ पर, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा को अगर हमने माइनस थीटा से चेंज किया, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, देखिए y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये हो जाएगा कितना, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉस माइनस थीटा, cos थीटा। कॉस थीटा, है ना। तो ये देखिए ये आ रहा है, ये देखिए ये हमने ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि इफ वी चेंज द वैल्यू x बाय माइनस एक्स, ये हमने थीटा को माइनस थीटा से चेंज करके दिखाया और हमको फिर से वही अगर रिजल्ट मिल जाता है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो ये अब यहाँ पर जो ये होगा आपके पास में कॉस फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपका, इवन फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आया श्रेयस यहाँ पे बात समझ में, श्रेयस? यस सर। हाँ, अब अगर हम इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा, सारे लोग देखिए, इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा अगर हम इसको कितना ले लेते हैं, सपोज साइन थीटा, सपोज हमने इसको ले लिया साइन थीटा। श्रेयस मैंने ये सीख लिया आज, ये कैसे चेंज होगा पेज। y इज इक्वल टू माइनस, हमने सपोज ये ले लिया कितना, दिस इज साइन थीटा, राइट। गिव प्रॉपर अटेंशन हियर, हाँ। अब y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा रिप्लेस बाय माइनस थीटा, ओके, माइनस थीटा। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल माइनस साइन थीटा। है ना। आमिर खान, आर यू देयर? यस सर। बहुत दिन बाद आए भैया, कहाँ चले गए थे आप? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी सर मेरे यहाँ पर, इसलिए नहीं आ पा रहा था, आज जाके ठीक हुआ सर वो, इसलिए। बहुत दिन बाद आए हो आप, ठीक है। यस सर। ओके, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज, दिस इज माइनस साइन थीटा, वी कैन राइट इट, दिस इज माइनस साइन थीटा। अब देखिए तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव मिल गया ना, इसको अगर हम y को एफ एक्स से भी बोलते हैं, ये एफ थीटा अपन ने यहाँ थीटा लिया इसलिए थीटा से हम बोल सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे को जब हमने रखा तो हमारे को कितना मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, देयरफॉर दिस इज व्हाट, नेगेटिव ऑड फंक्शन। ये कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ये जो फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज व्हाट इज ऑड फंक्शन। मगर अब यहाँ पर भी देखिए, अगर हम इसकी नेक्स्ट फंक्शन इसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर ऐसा नहीं कि साइन जहां भी दिखा और आप बोल दो कि दिस इज ऑड फंक्शन, इफ दिस इज स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज, अरे बोलो भाई, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अगर हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू दिस इज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
तो देखिए यहाँ पर कुछ बड़ी चीज नहीं पूछ रहा मैं आपसे, ये तो ये जो माइनस साइन है ना प्लस में चेंज हो जाता। अगर हम इसके अंदर थीटा को माइनस थीटा भी सब्सटीट्यूट करते तो ये देखिए यहीं पर हम लिखकर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर होता तो ये होल स्क्वायर इसका हो जाता है। ये प्रॉपर्टी बोलती है आपकी, ठीक है, दिस इज होल स्क्वायर, राइट। और होल स्क्वायर होने से ये कितना मिल जाएगा आपको, प्लस साइन मिलेगा। तो ये कौन सा फंक्शन में चेंज हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो इस तरीके से होता है। अब इसी हिसाब से फिर उसका ग्राफ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, समझ रहे हैं शेयर्स, आपने पूछा था। तो यस सर। अब ये ग्राफ अपना क्या होता है कि ये साइन का ग्राफ कहाँ से अपना स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होगा ना, ये इस तरीके से, इस तरीके सॉरी ऐसे इंक्रीज। तो अब किसी इंटरवल के लिए वो देखा जाएगा कि इंक्रीजिंग है कि अब फंक्शन तो यहाँ पर भले ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा ऑड फंक्शन हो रहा है, ग्राफ उसका ये जा रहा है, मगर हम उसको ये, इससे आपका जो मेन क्वेश्चन था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑड इवन से क्या रिलेशन, ये दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इस इंटरवल के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में जहां से जहां तक वो क्वेश्चन देगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। सर पर ये तो नैनो फंक्शन है ना। कौन सा, हाँ ये वाला नाइदर, हाँ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बिल्कुल से। मगर हम इंटरवल की बात कर रहे हैं ना बेटा, इंटरवल के लिए अगर हम एक इंटरवल फिक्स कर देंगे कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, है ना, तब अगर हम नैनो कब हो जाएंगे, मान जो आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ से जाकर के फिर हमने टर्न ले लिया, तो यहाँ ये एक समय तक तो इंक्रीज हुआ, फिर कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आप उसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मगर एक स्पेसिफिक इंटरवल की जब वो बात, जब अपन क्वेश्चन करेंगे आगे उसमें, तब अपन उस पर और डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ चलिए अब अपन देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए जल्दी से। आज ओके, तो हमने ये पॉइंट नंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अप टू पॉइंट नंबर विच फोर्थ डिस्कस हो गया, यस, हाँ, एवर इंक्रीजिंग। फिफ्थ वन, फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू जीरो, राइट। देखिए वन मोर थिंग इसमें जल्दी से देखिए, अब हमने x का इस ग्राफ पर फोकस करिए, ये इस साइड हम जा रहे हैं, वो लार्ज नेगेटिव वैल्यू बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर फॉर लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, हाँ लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, ये इस साइड पर चलिए, तो ग्राफ देखिए कैसा जा रहा है, बिल्कुल उसके पैरेलल होता जा रहा है, और मगर इसको कभी कट नहीं करेगा, इट विल नेवर कट इट, राइट, ये उसके बिल्कुल पैरेलल होते हुए जाएगा, जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे वो उसके बिल्कुल टच भी नहीं करेगा, बहुत नजदीक से जाएगा, ओके। तो ये इस पर ये बताने का कोशिश कर रहा है, दिस इज पॉइंट नंबर फिफ्थ, ओके, राइट। एंड एक वन, इसकी एक सीरीज होती है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसकी आप ये वाली सीरीज इसको नोट कर लीजिए, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड यू कैन, हाँ ये लिख लीजिए जरा फर्स्ट वाला सारे लोग, e raised to the power x exponential function, e raised to the power x exponential function, and this is equal to 1 plus x upon factorial 1 plus x upon factorial 2, please note down this, x cube upon factorial 3, right। अगर x को हम चेंज कर देंगे, x इज 1, तो आपका बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, लाइक दिस। बाकी पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल वहां पर उसने रेफरेंस दिया, दैट्स व्हाई हमने आपको दिखाया कि व्हाट इज, इसको आप नोट रखिए कि दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीरीज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, एक्चुअली ये लिखा हुआ है दिस इज द सम ऑफ द सीरीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीरीज को इसने लिखा, आप आगे करके लिख लीजिए, अभी आपने नोटबुक में लिखा है आपने, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। हमने x का लिखा है, आपको e रेज़ टू द पावर x लिखाया, अब यहाँ x तो कहीं नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये e की पावर 1 की सीरीज है, e रेज़ टू द पावर 1, ओके। चलिए now come to the next point, that is the logarithmic series, okay। अब logarithmic series and exponential function की सीरीज जो है, हमने अभी बिल्कुल बिगिनिंग में, हमने जैसे क्लास स्टार्ट की थी आज की,
हमने आपको ये यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये शो किया हुआ था, ये देखिए, राइट, ये हमने बताया था कि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये देखिए a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n, इसी को हम फिर किस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाएगा, तो log n बेस a इज इक्वल टू x हम लिखते हैं, राइट। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल कैन बी रिटन एज लॉगरिथमिक, एंड लॉगरिथमिक को अगर हम चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से लिखा है। कई बार ऐसा रिलेशन लिखना पड़ेगा आपको। वन मोर थिंग, कि ये जो n होता है ना, इट इज, हम ये देखिए इसी से हमने बनाया है एक्सपोनेंशियल से, और एक्सपोनेंशियल में हमने बोला हुआ था कि किसी पॉजिटिव रियल नंबर को वी कैन रिप्रेजेंट इन टू वेज, पॉजिटिव रियल नंबर। हैंस ये n कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, a भी हरदम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और a इज नॉट इक्वल टू 1, राइट, एंड 1। हाँ, तो देखिए द फंक्शन इन दिस फॉर्म इज नोन एज, ये देखिए, लेट b इज ग्रेटर देन 1 be the real function, then we say that logarithm of a to base b is x, b raised to the power x is equal to a को हम logarithmic फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई बोलेगा यहाँ पर, अभी हमने आपको दिखाया है b raised to the power x is equal to a, this is exponential, इसको logarithmic में चेंज करके दिखाइए, कितना बन जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, कोई बोलेगा, लिख लीजिए, लिखिए, log a base b is equal to x। ये देखिए लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लाइन ही पढ़ लीजिए, लॉगरिथम ऑफ a टू बेस a इज डिनोटेड बाय ये log a बेस b। ये क्या होता है, ये x फ्री हो जाता है उस समय, और ये log में चला जाएगा, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें ये, अब देखिए यहाँ पर इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है यहाँ पर। हेयर आल्सो वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ बेस, एक इसका 10 बेस होता है लॉग में, और एक कौन सा बेस होता है, ई बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10, प्लीज, when base of log is 10, it is known as common logarithms, right, and if base is e, if base is e, it is known as what is natural logarithm। अच्छा, अब देखिए, और नेक्स्ट लाइन, अब often natural logarithm is denoted by ln, लिख लीजिए इसको, किस तरीके से हम नेचुरल को, when base is e, हम ln भी बोल देते हैं, मगर अपने इसमें वो log ही लेकर के चलेगा। देखिए, in this chapter log x denotes the logarithmic function to base e, log अपने इसमें log x ही लिख रहा है, मगर आप RD वगैरह या दूसरी बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ln भी लिखा मिलेगा, राइट। तो उसका मीनिंग क्या होगा ये आप समझ जाना। सर बोर्ड्स में आते कि सर ln फंक्शंस के क्वेश्चन? हाँ बेटा आएगा आपको, मैं उस लेवल, मैंने इसका डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, मगर इसकी जरूरत आपको बेटा कई जगह, जो ये बेसिक चीज बता रहा हूँ ना, ये आपको जरूरत पड़ेगी इसमें आगे, ठीक है। और ये लॉगरिथम पे डिफरेंशिएशन तो है, ये इंटीग्रेशन में भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो कई बार स्टूडेंट वहां रुक जाता है, ठीक है, ये बेस की ई आ गया सर, अभी 10 था, ई आ गया, ये क्या हो गया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, अब इस पर देखें, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसको डिस्कस अपन करते हैं, राइट। देखिए, some of the important observations about the logarithmic function, right? First, we cannot make a meaningful definition, always इसका जो बेस है ना, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेट पॉजिटिव होना चाहिए। इट इज, log is defined for greater than
1 के लिए ही डिफाइन है ये, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं डिफाइन होगा। सेकेंड, द रेंज ऑफ लॉग फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज, अब यहाँ पर रेंज देखिए, रेंज ऑफ लॉग फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? रेंज हमारे को, ये देखिए, वो पिछला जो प्रीवियस ग्राफ था वो नेगेटिव पर नहीं जा रहा था, मगर ये कहाँ जा रहा है, इसका रिजल्ट नेगेटिव पर भी जा रहा है आपके पास में, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, द पॉइंट 10 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ। ये देखिए, दिस इज 10 इज ऑलवेज, वहां 01 ऑलवेज ऑन द ग्राफ, यहाँ 10 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ, राइट। द लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। ये भी देखिए इस तरीके से चलता है, ये नीचे भी लॉग का ही है, ये जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से जाता है, ये भी इंक्रीजिंग, ये नीचे से आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो इंक्रीज करता है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ओके। फॉर x very near to 0, the value of log x can be made lesser than any given real numbers। वो अगर x की वैल्यू 0 के बहुत पास होगी तो ये ग्राफ यहाँ पर देखिए, ये भी उसी चीज का ग्राफ है और ये भी यहाँ पर, दोनों एक ही बात। ये देखिए, ये फिर से y एक्सिस के निगेटिव साइड में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टच करने वाला, एक्चुअली इट विल नॉट कट इट, राइट, उसके बिल्कुल पैरेलल उसके निकल जाएगा, वहां से जाएगा वहां पे, राइट। तो जब ये 0 के बहुत नजदीक होगी x की वैल्यू तो ये आउटपुट इस तरीके से आपको मिलेगा, ओके। फिर नेक्स्ट वन इज gives that the plot of y is equal to e raised to the power x। अब ये देखिए, ये जो ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, ये दोनों देखिए एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिख रहे हैं, मिरर ग्राफ है। ये देखिए, ये फर्स्ट वन, दिस इज द ग्राफ ऑफ e raised to the power x, e raised to the power x, and this is the graph of what, log e x base e, log x base e। ये देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर ग्राफ हैं, y इज इक्वल टू एक्स को अगर एक मिरर के जैसे यूज करके इसको देखा जाए तो इसका ये जस्ट अपोजिट है और इसका ये अपोजिट है, मिरर ग्राफ, ओके। नाउ ग्राफ के बाद में सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्लीज नोट करिए इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। रिजल्ट्स, इन्हीं के बेस पर आप क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। देखिए, आपकी बुक से ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट रूल, रूल नंबर फर्स्ट, लॉग पी बेस ए, राइट, ये चेंजिंग ऑफ बेस रूल है, आप इसको हेडिंग दे सकते हैं, साइड में लिख लीजिए, चेंजिंग ऑफ बेस, है ना, हाउ टू चेंज द बेस। और ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए, अब हम यहाँ पर P और A है, हम दोनों का एक कॉमन बेस B लेना चाह रहे हैं। क्या लेना चाह रहे हैं हम? B बेस B एक हम बनाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, log P बेस B अपॉन log A बेस B, ठीक है। अगर कुछ भी लिखा होगा यहाँ पर, मान लीजिए लिखा होता log तुम्हारा 10 raised to the power 3, राइट, तो आप उसको किस तरीके से लिखते हैं? log 3 बेस e, अगर हम e लाना चाह रहे हैं वहां पर, एंड से नीचे 10 था तो log यहाँ हो जाएगा 10 बेस e। इसको आप अंडरलाइन करके रखिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, log p इंटू क्यू बेस b। सर, हाँ सर पहले वाले में सर बी कहाँ था? क्या बेटा? सर बी तो सर डिफाइन ही नहीं था सर पहले वाले में। ये p ये है ना बेटा? सर पी नहीं सर बी, लॉग बेस बी कर हाँ देना हाँ, सर। वो हमने एक बेस को इंट्रोड्यूस किया, उसी के लिए तो वाला फॉर्मूला है पूरा। हमारे को ये यहाँ पर एक बेस हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हाउ टू रिप्रेजेंट, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लॉग कोई एग्जांपल बता दीजिए। लॉग पी बेस ए, इसका अभी हम एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, इसी को देख लो, इसी का एक्सप्लेनेशन पर आ जाओ, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखना,
थोड़ा और इसको लार्ज करूं, क्या दिख रहा है आपके पास? बुक तो आप ओपन करें हैं ना सारे लोग? ठीक है, यस सर। ओके। हाँ, देखिए इसमें क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड चेंज ऑफ बेस रूल टू ऑब्टेन log p base a in terms of log p base b. Let p base a is equal to alpha and p base b is equal to beta and log a base b is equal to gamma. ये तीन हमने अगर सपोज किए, तो अभी हमने आपको बताया कि log कैन बी रिटन एंड इन द फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये अल्फा इसके ऊपर आ जाएगा, a रेज टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू p, एंड ये सेकंड वन किस तरीके से हम लिख देंगे, ये बीटा इसके ऊपर जाएगा, लॉग अलग हो जाएगा, p रेज टू द पावर बीटा इज इक्वल टू p, एंड थर्ड वन इज b रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू a। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस। अब सब्स्टिट्यूटिंग द थर्ड इक्वेशन इन द फर्स्ट वन, देखिए थर्ड दिस वन हमने इधर पर रख दिया, a है ना, थर्ड में कितना, b रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू a, और फर्स्ट वन इज a रेज टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू p। तो a की जगह हमने कितना रख दिया, b रेज टू द पावर गामा, और उस पूरे की पावर कितना हो गया, अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, b रेज टू द पावर r अल्फा, r सॉरी गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू p। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हेलो स्टूडेंट्स, ये अलजेब्रा, ये अलजेब्रा तो समझ में आ रही है ना? सर एक बार और बता दीजिए, सर एक बार और बता दीजिए। किस जगह पे बेटा, किस जगह पे? ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये तीन लॉग अपन ने लिए, इनको अल्फा बीटा गामा माना, ठीक है बेटा, है ना? अब ये अल्फा बीटा गामा लॉग हम रिमूव करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल बन गए, ये लिखे हुए हैं 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आर रिटन हियर। ठीक है अनुराग, यहाँ तक ठीक है? अब ये एक्सपोनेंशियल कैसे बनेगा मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, फिर से दिखाऊं क्या उसे? ये देखिए, वेट, ये देखिए, ये हमने ये एक्सपोनेंशियल बताया हुआ था, यहाँ पर देखिए दिख रहा है अनुराग? इस तरीके से हम इसको यस सर, इस तरीके से चेंज करते हैं ना, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए, log n बेस a इज इक्वल टू x, इसको हम लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये n जो है ना यहाँ log में, ये फ्री हो जाता है, ये सामने आ जाएगा, और ये जो x अभी फ्री था ये बेस में उस पर चला जाएगा पावर में, तो a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n वी कैन राइट इट, है ना? तो वही तीनों चीजों को इसी उस पर वहां पर चेंज किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये ये हमने ये तीन लॉग सपोज किए थे, अल्फा बीटा गामा, उनको ये तीन वैल्यूज आ गई आपके पास में। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू उठा करके हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b रेज टू द पावर r इन अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू p, यूजिंग दिस इन द सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कौन सा है आपके पास में, ये है b रेज टू द पावर बीटा इज इक्वल टू p। यहाँ पर आप वैल्यू जब रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए p की जगह आप ये रख दीजिए, कितना, b रेज, ये दिस p कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन। ओके अनुराग, हाँ, तो ये देखिए ये हो गया b रेज टू द पावर बीटा इज इक्वल टू b रेज टू द पावर गामा इंटू अल्फा। अब बेस आर सेम, तो हम कितना लिख सकते हैं, पावर्स को हम बीटा इज इक्वल टू गामा इंटू अल्फा, आपकी 8th क्लास की मैथ्स आप, राइट? तो ये देखिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू गामा, ये देखिए बिकॉज बेस दोनों के सेम हो गए थे, है ना? तो हमने ये इसको वी कैन राइट लाइक दिस। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन गामा, और अल्फा हमने ये सपोज क्या किया हुआ था, ये देखिए दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका चेंज इस तरीके से। अब कहीं भी क्वेश्चन आएगा, हमको कोई नया बेस अगर लेना होगा तो हम उस बेस को दोनों में लिख लेंगे, और ये ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाले को हम नीचे रखेंगे उसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब थर्ड रूल,
थर्ड रूल में क्या होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है दो नंबर लॉगरिथम में, तो वो एडिशन होकर के अलग हो जाएंगे। मतलब log p इंटू क्यू बेस b कैन बी रिटन एज log p बेस b प्लस log q बेस b। ये इट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स, मोर देन टू के लिए भी सेम रूल इज एप्लीकेबल, राइट। डायरेक्ट इसका भी उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, मगर डायरेक्ट आप सीधा इसको देख लें क्योंकि आपको ये जरूरत पड़ेगी। ये एक्सप्लेनेशन में भी कुछ नहीं है, वही अल्फा बीटा लिए हैं और उन्हें एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले लगा दिए हैं और कुछ नहीं किया उसमें, ठीक? ये मगर इंपॉर्टेंट है, कहीं अगर लिखा होगा लॉग बेस, अब आपका ई बेस होगा आपके पास, तो क्वेश्चन में बेस कितना आएगा ई, ये तो फॉर्मूले में उसने बताया। तो आप इनको अलग अलग कैसे करेंगे, पी करके करेंगे, बीच में प्लस आ जाएगा। ओके, फोर्थ रूल नोट कर रहे हैं कि केवल देख रहे हैं आप लोग, ये रूल लिखते चलिए तभी आपकी प्रैक्टिस होगी भाई, प्लीज। फोर्थ रूल या जो भी है, कौन सा है, सेकंड थर्ड है मेरे ख्याल, थर्ड रूल, log p स्क्वायर बेस b कैन बी रिटन एज, ये लास्ट में जो लिखा है ना, टू आ जाएगा सामने, ये टू बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये टू वी कैन राइट इन द फ्रंट एंड log p, और बेस जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, बेस कहीं नहीं गया है। कैसे हुआ उसने उसको समझाया हुआ है कि log p स्क्वायर को हम log p प्लस log p लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ये वाला रूल लगेगा इसके पहले वाला कि p स्क्वायर कैन बी रिटन एज p इंटू p if two numbers are in the multiplication, then they next step they can write in addition, इस तरीके से। और एडिशन सेम थिंग है तो टू टाइम्स हो जाएगी। तो आपको ऐसा कभी भी अगर मिलेगा पावर में, तो पावर को सामने लेकर के आ जाना और ये हो जाए। तो फॉर्मूला ये बन रहा है आपके पास में, कौन सा, ये नीचे लिखा हुआ है, log p रेज टू द पावर n बेस b इज इक्वल टू n log p, n log p, okay, and the last one is log x अपॉन y बेस b। अब डिवीजन में है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थे, यहाँ पर किस में है, नंबर्स डिवीजन में है, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। देखिए log x बेस b माइनस log y बेस b, इनके प्रूफ कहीं नहीं आएंगे मगर आपको इनके रिजल्ट ही यूजफुल है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब देखिए इन पर हम क्वेश्चंस आपको बताते हैं। ये रूल्स जब पता होंगे देन ओनली यू कैन सॉल्व द लॉगरिथमिक। कल टुमारो मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे ये रूल्स पूछेंगे। अब एक टेस्ट मैं लेने वाला हूँ बहुत जल्दी आपका, ठीक है। किस टॉपिक पर लूँ आप बता दीजिए। हेलो, टेस्ट एमसीक्यू, जिस पर हम वो गूगल फॉर्म देंगे और आपको फिल करके देना है। मैट्रिक्स ठीक रहेगा, बहुत पहले हो चुका है, सभी के लेने हैं। ओके, तो आप सुन, हाँ बेटा, ठीक है, तो सारे ही उसमें लेंगे। आप सुन लीजिए कि हम, आवाज नहीं आई आपकी बेटा, हाँ, कि नेक्स्ट हम जो लेंगे टेस्ट एक बहुत जल्दी, तो वो हम मैट्रिक्स की उस पर लेंगे, प्रॉपर्टीज पर भी हो पाएगा, जो भी होगा आप उसको पढ़िए पूरा, ठीक है। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेंगे उसके अगला इनवर्स पर, फिर इस पर, इस तरीके से लेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब देखिए द इम्पोर्टेंट थिंग, वन मोर, क्या और आपको बताना है, हाँ, ये फॉर्मूले लिखिए, लिखिए, ये शायद पहले भी लिख चुके हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इज ई रेस टू द पावर एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log x is 1 upon x, ओके। देखिए क्वेश्चंस,
जैसे इसने एग्जाम्पल पर ही समझिए, फिर एक्सरसाइज भी बता देता हूँ. सपोज द फर्स्ट इज डिफरेंशिएट ई रेस टू द पावर माइनस एक्स. डिफरेंशिएट ई रेस टू द पावर माइनस एक्स. तो ये दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन डिफरेंशिएट. चेन रूल इज एप्लीकेबल. तो दैट यू कैन राइट डी बाय बाय डी एक्स. अभी हमने बोला कि ई रेस टू द पावर एक्स इज ई रेस टू द पावर एक्स डिफरेंशियल. तो ये ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज ई रेस टू द पावर माइनस एक्स. बट चेन रूल से डिफरेंशियल ऑफ माइनस एक्स करेंगे, दिस इज माइनस वन. तो रिजल्ट इज माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स. This second one, sin y is equal to sin log x. इसका हम जब डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का कितना होगा, cos log x. बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. अगेन डिफरेंशिएट log x. तो ये हो जाएगा log x इज 1/x. इस तरीके से होगा. ठीक है. चलिए अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ट्राई करने की कोशिश करते हैं. टेस्ट का है हाँ बेटा. सर, आपने अभी टेस्ट का बोला था ना सबका. हाँ बोला है. टॉपिक बता दिया ना. डेट. हाँ सर डेट सर मैं था नहीं, मेरा सर नेटवर्क इशू हो गया. अच्छा, अभी डेट नहीं बताई है, हम बता देंगे आपको. ठीक है. हमने मैट्रिक्स टॉपिक बताया है. मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पर लेंगे. ठीक है. ओके सर कब होगा? बेटा, मैं बहुत जल्दी आपको डेट बता दूंगा. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली या तो इसी सैटरडे, नहीं तो मंडे को, जब दोनों क्लास रहेंगी, दोनों क्लास सेक्शन के लोग रहेंगे. ठीक है. राइट. हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. कौन सा? ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स. क्या आपसे बनेगा कि मैं करके दिखाऊं? बन जाएगा सर. नहीं, आपसे बन जाएगा. सारे लोगों से वो हमको वही बोलना पड़ेगा ना. सारे लोग बताएं. शुड आई सॉल्व इट? कोई या जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं बनेगा तो अपन उसको कर लें. चलो इसी को मैं आपको एक बार, आप फिर से बहुत दिन से भूल गए होंगे शायद, तो आप देख लीजिए इसको. चलिए इसको करिए सारे लोग. आप भी स्टार्ट करिए अपने उसमें. यस, द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट e raised to the power x upon sin x. आप करिए कॉपी में जल्दी. दिस इज e raised to the power x upon sin x. Differentiate with respect to x. आप करते चलिए. y dash, which rule is applicable? Something is special here. कोई स्पेशल रूल लगने वाला है क्या? सर क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन. सर क्वेश्चन. यस. हाँ, वेरी गुड. तो उससे करिए आप. सर आ गया. आ गया. ओके, वेरी गुड. बताने की जरूरत नहीं है मेरी. इजी क्वेश्चन है. ठीक है. चलिए, और कहीं का आया है क्या? और किसी का आया आंसर? सर आ गया. आ गया सर. ओके. चलिए एक काम करते हैं, हम एक बार इसका जल्दी से रिव्यू उसमें से दिखा देते हैं, इसके डिफरेंशिएशन, क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है. आप भी करके रखेंगे फिर. हाँ, जो नहीं बनेगा तो आप फिर पूछना. देखिए यहाँ पर. वेट. हाँ देखिए. यस. हाँ, फर्स्ट e raised to the power x upon sin x.
तो जो भी आपने किया कि क्वेश्चन लॉ अप्लाई करने पर ये हो जाएगा साइन एक्स as it is dy dx of ex minus e raised to the power x dy dx of sin x upon sin square x and उसका ये रिजल्ट आएगा, राइट. e raised to the power sin inverse x, e raised to the power sin inverse x can be written as e raised to the power sin inverse x as it is, फिर by chain rule dy dx of sin inverse x, sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. This is the answer. Then e raised to the power x cube, e raised to the power x cube. So e raised to the power x cube as it is, then dy dx of x cube. Okay, d by dx of sine into tan inverse e raised to the power minus x. So this can be written as sine है, तो sine का हम डिफरेंशियल करेंगे तो रिजल्ट आएगा cos. यहाँ थोड़ा सा आप इसको करिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद करिए, देन वी विल एंड द क्लास. Everybody will solve the question. Y is equal to sine into tan inverse e raised to the power minus x. Then I will show you the answer and wind up कर देंगे हम क्लास को. Do it fast. Of course, chain rule is applicable. हार्दिक आ रहे हैं क्लास में, हार्दिक शर्मा, हार्दिक, मोहम्मद, फणींद्र, आर यू देयर फणींद्र? फणींद्र, यस सर. हाँ बेटा, बन रहा है यस सर, क्वेश्चन? प्रेजेंट सर. हाँ क्वेश्चन बन रहा है, करो जल्दी. शीशा, Yes, sir. गुड गुड. यश, यश पाराशर, Yes, sir. हाँ वेरी गुड, करो बेटा. हाँ शरद, हो गया सर. अरे वाह, आ गया सर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपका इसी तरीके के आंसर हमारे को मोटिवेट कर सकते हैं. हम अगर हम 12th के बच्चों से ये उम्मीद रखेंगे कि वो केवल बोल नहीं रहे कि हो गया, हो ही गया है, राइट. देखिए और कोई दिखाऊं क्या इसका आंसर, मैं शो करूं? ओके, देखिए y is equal to sin tan inverse e raised to the power minus x. इसको डिफरेंशिएट किया तो ये cos में हो जाएगा, d by dx और फिर इसका हो जाएगा बाई चेन रूल. फिर tan इनवर्स e की पावर माइनस x का होगा तो tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, अगेन d by dx ऑफ e पावर माइनस x. ओके, तो ये दिस इज e पावर माइनस x और फिर माइनस x का माइनस 1. कितने लोगों का रॉन्ग हुआ, कहीं पर मिस्टेक हुई, बोलिए जरा, जो इससे चेक किया हो कि यस सर हमने यहाँ पर रॉन्ग किया. किसी का नहीं? गुड, सर मेरा हो गया सर wrong. हाँ वेरी गुड. और किसी का भाई? चलिए, सो नाउ थैंक यू एंड साईराम.